Hello students, my name is Priyanka Pathak. I am Assistant Professor at BBD University in Mass Comm Department. In this video lecture, you will study about the subject Principles of Communication. In this subject, Principles of Communication, we have already discussed various topics. And in the previous lectures, we have discussed the normative theories of press that are authoritarian theory, libertarian theory, Soviet communist theory, and also social responsibility theory. After that, Dennis Maxwell added two more theories of press in normative theories of press that are development media theory and democratic participant media theory. So, in the previous lecture, we have already discussed the development media theory, and in this video lecture, we will discuss the democratic participant media theory. So, let's start with the lecture. So in this video lecture, we will first discuss the democratic participant theory, and we will discuss the introduction about it, what is it, and how it emerged. Now, the second point, we will discuss the concept of democratic participant theory and features of democratic participant theory and its main principle. So, democratic participant theory is the sixth theory of press that is also known as democratic participant theory was started by grassroots level media. Yes, this theory was applied by grassroots level media, and it emerges because of the dissatisfaction with four classical models such as libertarian theory and social responsibility theory, authoritarian theory, and Soviet communist theory. So this theory emerged because the other four theories had not satisfied the media system. So democratic participant theory believes media should be totally democratic and be easily accessible or participatory to the general public. Yes, so according to this theory, मीडिया शुड बी डेमोक्रेटिक उनको उसको डेमोक्रेसी फॉलो करना चाहिए, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए, मीडिया को डिक्टेटरशिप में नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर डेमोक्रेटिक रहेगी तो जो पीपल है, पब्लिक, जर्नल पब्लिक है, कॉमन पीपल है, वो उसको ईजिली एक्सेस कर पाएंगे और पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So according to this theory, the private and public monopolization, centralization of press and top-down approach in the media is harmful for a society. Yes, public monopolization and private monopolization, that means कि अगर कुछ particular media channels रहेंगे या कुछ particular media newspapers रहेंगे, so वो अपनी मनमानी करेंगे, उनका जो मन आएगा वो दिखाएंगे, जो मन आएगा उसको पब्लिश करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे. और कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ मीडिया, मतलब प्रेस शुड बी वन, वो डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, रीजनल प्रेसेस नहीं होनी चाहिए, या फिर जो सेंट्रलाइजेशन है, मतलब जो मीडिया है वो नेशनल लेवल पे ही होना चाहिए, दैट इज हार्मफुल फॉर अ सोसाइटी. और जो ऊपर से नीचे की अप्रोच है मीडिया में, टॉप डाउन अप्रोच जो है मीडिया में, वो भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है. दैट मीन्स कि जो मीडिया टॉप लेवल से जो भी डिसेमिनेट करेगा, उसको टॉप लेवल पे जो भी शेयर करेगा उसी को डिसेमिनेट करेगा, और जो आम पब्लिक है वो उसको अगर कुछ शेयर करना है तो वो वाली अप्रोच जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मतलब दैट मीन्स कि डाउन टू टॉप अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट, बट टॉप टू डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नीचे की जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं मीडिया में हार्मफुल है सोसाइटी के लिए. कि जो भी एलीट क्लास है, गवर्निंग अथॉरिटीज़ है, उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी मीडिया को, वो सारी मीडिया ने ऊपर से नीचे वो डिसेमिनेट कर दी, बट जो नीचे की इंफॉर्मेशन है वो डिसेमिनेट नहीं की, वो कम्युनिकेट नहीं की, तो दैट इज़ हार्मफुल. सो ये थ्योरी कहती है कि टॉप टू डाउन अप्रोच जो है वो गलत है, और जो डाउन टू टॉप अप्रोच है दैट इज राइट. नीचे से चीज़ें डिसेमिनेट होके ऊपर जाना, दैट इज राइट. नॉट सिर्फ ऊपर की चीज़ डिसेमिनेट होके नीचे तक आना, दैट इज
इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स कि इंफॉर्मेशन ऊपर से नीचे तक लोगों तक पहुंचना ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, और लोगों की इंफॉर्मेशन, लोगों की प्रॉब्लम्स नीचे से ऊपर पहुंचना ये कहीं ना कहीं सही है। द प्रेस शुड स्टैंड फॉर इक्वालिटी, यस, सो प्रेस को इक्वली स्टैंड लेना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए, जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। इट शुड टेक अ प्लूरिस्टिक, डिसेंट्रलाइज्ड एंड बॉटम अप और हॉरिजॉन्टल अप्रोच। तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी ने स्ट्रेस किया कि मीडिया को इक्वालिटी के स्टैंड लेना चाहिए, प्लूरिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स की न्यूज़ को कवर करना चाहिए, ऑल रीजन्स की न्यूज़ को कवर करना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ है सिर्फ उन्हीं की न्यूज़ को दिखाना चाहिए। सो अगर कंट्री है, कंट्री में अलग अलग रीजन्स है, तो हर रीजन की न्यूज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्लूरिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। सिर्फ सेंटर पे ही मीडिया नहीं होना चाहिए, सिर्फ मीडिया पे किसी एक का होल्ड नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक किसी सिटी में ही उसके ऑफिसेज नहीं होने चाहिए, उसके प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, इवन डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब हर स्टेट में मीडिया की फंक्शनिंग होनी चाहिए, हर रीजन में मीडिया की फंक्शनिंग होनी चाहिए, रीजनल मीडिया होना चाहिए, रीजनल कवरेज होनी चाहिए, एंड बॉटम से नीचे से ऊपर अप्रोच होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल अप्रोच मतलब जो इक्वल लेवल पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट हो और नीचे से ऊपर तक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट। So concept of democratic participant theory, the major concept in democratic participant media theory is participation. Yes, the name itself says participation and full circular communication. पूरा एक सर्कुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, अगर टॉप टू डाउन है तो डाउन टू अप भी होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट से जनरल पब्लिक को कम्युनिकेशन हो रहा है तो जनरल पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी गवर्नमेंट तक कम्युनिकेट होनी चाहिए, गवर्निंग एलिट्स तक, पावरफुल एलिट्स तक कम्युनिकेट होनी चाहिए। मीडिया इज सेड टू बी इम्पॉर्टेंट इन रूरल सेटिंग एंड इन द कल्चर्स दैट आर डिग्रेडिंग विद टाइम। यस, सो मीडिया जो है वो जो गाँव के लोग हैं, जो रूरल सेटिंग है, रूरल सेटअप है, रूरल एनवायरनमेंट है, वहाँ के लिए मीडिया जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, उनको अवेयर करना, एजुकेट करना ये मीडिया का काम है, और सिर्फ उनको वहाँ तक मीडिया ही पहुँच सकता है। तो मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रूरल सेटिंग के लिए मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन द कल्चर्स दैट आर डिग्रेडिंग विद टाइम, और कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है, जो भी कल्चर जो डिग्रेड हो रहा है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मीडिया बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उस कल्चर को प्रमोट कर सके, इन्हांस कर सके। So media is important in promoting and in saving our culture and society. The theory is believed to conserve and revive local culture by promoting the right to information, global and local, right to express feedback, right to use new technology, means of communication, freedom to local data, freedom to take part in social action, etc. So this theory says that कि हमें जो अपना जो लोकल कल्चर है उसको हमें कंजर्व, बचाना चाहिए और उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको हमें प्रमोट करते रहना चाहिए थ्रू राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर कोई लोकल कल्चर के बारे में या ग्लोबल कल्चर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो, उसके पास शेयरिंग का ऑप्शन होना चाहिए, उसके पास फीडबैक का ऑप्शन होना चाहिए, उसके पास एक्सप्रेस करने का ऑप्शन होना चाहिए, और राइट टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे सोसाइटी में, जो भी हमारे नेशन में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर्स एंड सोशल मीडिया, जो भी नए नए ऐप्स आ रही हैं, तो उनको भी यूज़ करने का हमें राइट होना चाहिए। और हमें फ्रीडम टू लोकल डेटा, जो लोकल डेटा है उसको एक्सेस करने का फ्रीडम होना चाहिए, रीजनल डेटा, लोकल डेटा को एक्सेस करने का फ्रीडम होना चाहिए, एंड फ्रीडम टू टेक पार्ट इन सोशल एक्शन, जो भी सोशल
इवेंट्स होते हैं या कोई भी सोसाइटी के लिए कोई एक्शन लेना है तो उसमें भी लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो ज़रूरी है और लोग फ्री होने चाहिए अपने इनपुट्स देने के लिए और मीडिया को ये सारी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए. मीडिया शुड always cover all these issues. In the process, it expects the government to provide funds, training and subsidies after identification if they have financial or technical difficulties. Yes, अगर कोई मीडिया है जिसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है और वो इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, वो जो लोकल मीडिया है वो कल्चर को प्रमोट कर रहा है, सोशल एक्शंस को प्रमोट कर रहा है, लोगों के फीडबैक को प्रमोट कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने में, कंजर्व करने में हेल्प कर रहा है, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स बना रहा है, उससे रिलेटेड बुलेटिन्स न्यूज़ बना रहा है, न्यूज़ कवर कर रहा है, तो उस केस में अगर उसके पास फंड नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है या कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी है उस पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या उस पर्टिकुलर मीडिया को, तो गवर्नमेंट को उस पर्टिकुलर मीडिया को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना चाहिए विथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन. एक आइडेंटिफिकेशन होने के बाद एक कि वो एक रजिस्टर्ड प्रेस है, एक रजिस्टर्ड मीडिया है या फिर एक रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है और जो इस जो डेवलपमेंट, जो नेशन के डेवलपमेंट और वेलफेयर के लिए काम कर रहा है. तो इन सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट को फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी. Dennis Maxwell in 1987 cite the development media theory and democratic participant theory as two new normative theories in his work. Yes, so Dennis Maxwell added two more theories, that the development media theory and democratic participant theory in the normative theories of press. The democratic participant theory advocates the support of media for culture pluralism at the grassroots level. Yes, so जो एक grassroots level होता है, नीचे स्तर से शुरू करना चाहिए हमें मीडिया का काम और कल्चरल प्लूरलिज्म करना चाहिए. मतलब जो भी डिफरेंट कल्चर्स हैं, जो भी डिफरेंट रीजन्स हैं, उसको मीडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी. सो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी एडवोकेट्स द सपोर्ट ऑफ मीडिया. यस, वो मीडिया का सपोर्ट करता है कल्चर प्लूरलिज्म, मतलब जो डिफरेंट रीजन के जो कल्चर्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल से, नीचे स्तर से उसको प्रमोट करने के लिए, जो आपकी लोकल मीडिया होती है उसके थ्रू प्रमोट जो करने के लिए, जैसे आपके कम्युनिटी रेडियो, कम्युनिटी प्रेस, कम्युनिटी पेपर्स, इस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी है वो एडवोकेट करती है. गवर्नमेंट सब्सिडीज शुड बी प्रोवाइडेड टू दीज स्मॉल ग्रुप्स if they are not able to gather the finances. So according to this theory, जो स्मॉल मीडिया ग्रुप्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जो उनका पर्पस है, जो वो करना चाहते हैं, अपने नेशन के कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज़ को, डेवलपमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, उसमें उनको हेल्प मिले और कोई रुकावट ना है. एग्जिस्टिंग मीडिया, स्मॉल मीडिया शुड बी इनकरेज एंड फंडेड. यस, सो जो एग्जिस्टिंग मीडिया है उसे भी जो प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और फंड करना चाहिए. जो भी एग्जिस्टिंग मीडिया है और जो स्मॉल मीडिया हाउसेज है उसको भी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इनकरेज करना चाहिए और फंड करना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके पास टेक्निकल नहीं होगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू जस्ट function properly. So that is why government funding is important for small group of media organizations. This theory says that. So the theory consider local information. Yes, local information, regional information पे इस theory ने focus करने के लिए बोला है कि जो local, जो society में जो हमारे local, जो हमारी city में चीज़ें हो रही हैं उसको भी मीडिया को inform करना ज़रूरी है. जो हमारे region के आसपास हो रही है उसको भी inform करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ national level की information को
रिपोर्ट करना ज़रूरी है, वैसे ही लोकल इन्फॉर्मेशन को भी रिपोर्ट करना ज़रूरी। सो द थ्योरी कंसिडर्ड लोकल इन्फॉर्मेशन, feedback, and social action and community level to be the roles of media. Yes, it discourages uniform, monopolized, and commercialized media culture. Yes, so according to the democratic participant media theory, तो मीडिया का जो कमर्शलाइजेशन है दैट इज़ नॉट गुड कल्चर। जो मीडिया ने अपने आप को कमर्शलाइज कर लिया है और एक तरीके से मोनोपोली बना लिया है कि हम सिर्फ यही दिखाएंगे और हम रेवेन्यू कमाएंगे, ये जो कल्चर है इट्स नॉट गुड। Rather, it want local non-institutionalized media to provide the information relevant to small group of population। तो छोटी छोटी एरियाज है, रूरल एरियाज है, छोटे छोटे रीजन्स हैं, वहाँ तक भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुँचाना, उनको एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, ये एक प्रायोरिटी मीडिया की होनी चाहिए कि जो जहाँ तक एक्सेस बहुत सारे न्यू मीडिया का नहीं है या बहुत सारे वो लोग खुद से नहीं कर पा रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो उन छोटी जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उन तक भी मीडिया कंटेंट, उन तक भी मीडिया इंफॉर्मेशन पहुंचाना ज़रूरी है। उनको अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। This theory makes interaction between the media and the audience possible as the population is less. It encourages feedback which is only possible in small group and communities. So this theory says that कि मीडिया को लोगों से इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मीडिया का इंटरैक्शन जो है वो लोगों से ज़रूरी है और ये तभी पॉसिबल है जब पॉपुलेशन कम हो। सो मीडिया शुड फोकस ऑन स्मॉल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ और उनको वो मीडिया कंटेंट शो करे, उनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचाए और उनसे फीडबैक लें। जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे वो फीडबैक लें और स्मॉल ग्रुप को टारगेट करने के लिए ज़रूरी है मीडिया का डिसेंट्रलाइज्ड होना। यस, सो जो नेशनल लेवल पे मीडिया है उसके लिए मे भी पॉसिबल ना हो गांव-गांव जाके लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनना या लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना। बट जो रीजनल मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, जो आपकी कम्युनिटी मीडिया है, उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। लाइक कम्युनिटी रेडियो ये एक ऐसा काम करता है। आपके जो रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं कि जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उसको टारगेट करें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सुने और उन प्रॉब्लम्स को कवर करें, हाईलाइट करें ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुँचे और उन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का जो अवेयरनेस है, गवर्नमेंट जो उनके अवेयरनेस लेके आई है, स्कीम्स लेके आई है, पॉलिसीज़ लेके आई है, वो उन तक स्मॉल ग्रुप तक पहुँचे, वो रूरल पीपल तक पहुँचे, कम्युनिटीज़ तक पहुँचे। और इसके लिए ज़रूरी है लोकल मीडिया का होना, रीजनल मीडिया का होना, कम्युनिटी रेडियोज़ का होना। Yes. So the model is completely non-political and does not bolster political control. So according to this theory, ये जो theory है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। Its main objective being encouraging national development, supporting local culture and maintaining a good relation with other countries. Yes, सो इस थ्योरी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस थ्योरी का वो है नेशनल डेवलपमेंट को इनकरेज करना, लोकल कल्चर को सपोर्ट करना और मेंटेन करना रिलेशनशिप दूसरी कंट्री से, क्योंकि हम वो सॉफ्ट लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, हम क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए अपने लोकल कल्चर को, इसलिए अपने लोकल जो हमारा लोकल लैंग्वेज है, लोकल कल्चर है, लोकल रिचुअल्स है, लोकल फूड है, उसको कहीं ना कहीं कंजर्व करना, रिवाइव करना ज़रूरी है। और मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसको रिवाइव करने में, कंजर्व करने में और मेंटेन करने में, थ्रू giving the coverage, through covering the program related to these subjects, through covering the news related to our culture, through broadcasting the programs related to our culture. It also promote equality between various gender. So this theory
ये जो थ्योरी है डेवलपमेंट सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी, वो कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। This theory states that कि media should also promote the equality between genders, classes, caste, races. So उनको इस तरीके की न्यूज़ कवरेज करनी चाहिए, इस तरीके का मीडिया कंटेंट दिखाना चाहिए जिसमें इन सारे इश्यूज पे इक्वालिटी आए, जेंडर, क्लासेस एंड कास्ट, and controlled by the group, etc. controlled by the group. This focus on equality is known as association mode, which is opposite of command mode. Sender superior to receiver. Yes. So the media should promote the local culture and should support the national development. Now we will discuss about the feature of democratic participant media theory. So now the features of features of democratic participant media theory. The main feature of democratic participant theory relates to the need, interest and aspiration of the active receiver in a political society. Yes. So जो active receivers हैं society के, उनके कहीं ना कहीं नीड पे, उनके इंटरेस्ट पे और उनके एस्पायरेशन पे फोकस करना. इट इज़ कंसर्न विद द राइट टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, the right to answer back, the right to use the means of communication for interaction in small scale setting of community interest group and subculture. So according to this theory, ये थ्योरी बात करती है कि सबके पास राइट है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का और देने का, और द राइट टू आंसर बैक, द राइट टू every media organization, journalist and reporter can use the means of communication for interaction, and the people of the society can also use the means of communication for interaction in small scale setting. That means कि अगर community कोई community मीडिया है, कोई स्मॉल स्केल मीडिया है, तो उसके पास भी राइट है कि वो कम्युनिकेशन के मीन्स को यूज़ कर सकता है, और कोई भी छोटा ग्रुप है या कोई छोटा कल्चर है, उसके पास भी राइट है कि वो कम्युनिकेशन के मीन्स को यूज़ कर सकता है, वो अपने ओपिनियन दे सकता है, आंसर दे सकता है, राइट रिप्लाई कर सकता है, फीडबैक दे सकता है, और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का राइट है उसे, और एक्सेस करने का भी राइट है. मीडिया इंस्टीट्यूशन कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द थ्योरी would be involved more closely with social life than they are present, and more direct control of their audience, offering opportunity for access and participation. So now we will discuss the main principles of this theory. So the first principle is individual citizen and minority group have the right to communicate. Yes, एक इंडिविजुअल सिटीजन है और माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं, चाहे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स किसी जेंडर रिलेटेड हो, कास्ट रिलेटेड हो, रिलीजन रिलेटेड हो, सबके पास राइट है, दे हैव द राइट टू कम्युनिकेट. उनके पास राइट है कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी बात को कह सकें. ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल कम्युनिटीज शुड हैव देयर ओन मीडिया. तो जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, रीजनल कम्युनिटीज़ हैं, उनके पास भी राइट है कि वो अपनी खुद की मीडिया इस्टेब्लिश कर सकते हैं. दैट मीन्स कि रीजनल मीडिया हो सकता है, रूरल मीडिया हो सकता है. तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है या ग्रुप, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो वो भी अपनी खुद का मीडिया सिस्टम, अपना खुद का मीडिया ओन कर सकते हैं. कोई ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपना खुद का मीडिया ओन कर सकती है. कोई भी लोकल कम्युनिटी है, वो भी अपना खुद का मीडिया स्टार्ट कर सकती है. The organization and content of media should not be subject to centralized political or state bureaucrat control. Yes, so कोई भी जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और उसका कंटेंट जो है मीडिया का, वो किसी भी पॉलिटिकल और स्टेट ब्यूरोक्रेटिक के कंट्रोल में नहीं होगा. यस, सो शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू सेंट्रलाइज पॉलिटिकल और स्टेट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. अगर कोई कम्युनिटी मीडिया है या कोई कम्युनिटी कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल मीडिया है,
तो वो उसका कंटेंट और वो उसका मीडिया कंटेंट और खुद वो ऑर्गेनाइजेशन फ्री है किसी भी तरीके के पॉलिटिकल और स्टेट ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से। दैट मीन्स मीडिया इज फ्री। वो जो स्मॉल मीडिया है वो भी फ्री है, उसके ऊपर भी किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं है। स्मॉल स्केल interactive and participative media forms are better than large scale one way and professionalized media. Yes, so according to the democratic participant theory, जो small media organizations हैं और जो ज़्यादा interactive और participative media है वो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन कर रही है एक लार्ज सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। जो एक लार्ज सेटअप मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उससे ज़्यादा अच्छा आपकी स्मॉल स्केल और जो इंटरैक्टिव मीडिया फॉर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़्यादा बेटर फंक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं रादर देन जो लार्ज स्केल मीडिया सेटअप है वो। वन वे एंड प्रोफेशनलाइज्ड मीडिया, जो कि वन वे है, जो कि इंटरैक्टिव नहीं है, जो सिर्फ डिसेमिनेट करता है, जनरल पब्लिक की सुनता नहीं है, फीडबैक नहीं लेता है, और बहुत ही हाईली प्रोफेशनलाइज्ड मीडिया है, वो कहीं ना कहीं जो स्मॉल स्केल मीडिया है, इंटरैक्टिव मीडिया है, पार्टिसिपेटरी मीडिया है, वो फार बेटर है प्रोफेशनलाइज्ड और वन वे मीडिया से। So the example of democratic participant media theory are the present concept of community newspapers, community radio and television। जैसे कि आप रीजनल न्यूज़पेपर्स देखते हो, आप कम्युनिटी रेडियो जो बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है, और जो आपके रीजनल टेलीविजन्स होते हैं, लोकल टेलीविजन्स होते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, लोकल कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स होते हैं, रीजनल न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो आपके आसपास की प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आपके स्टेट की प्रॉब्लम्स पे, आपकी सिटी की प्रॉब्लम्स पे, आपके आसपास की सोसाइटल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सो जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है उसका ध्यान, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका ध्यान ज़्यादा जाता है आपकी प्रॉब्लम्स पे, वो उन तक जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है आपकी, जो आपकी सिटी की गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, या आपकी सोसाइटी के आसपास का जो वार्ड जो पार्षद है, उन तक आपकी प्रॉब्लम्स थ्रू द मीडिया हाईलाइट होती हैं एंड देन दे टेक द स्टेप्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सोसाइटल जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जो रीजनल एरियाज़ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट मीडिया थ्योरी को फॉलो किया जाए, और जो स्मॉल न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी रेडियोज़ हैं, और जो रीजनल न्यूज़पेपर्स है, लोकल न्यूज़पेपर्स है, उस पर फोकस किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए ताकि लोकल प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो अगर हमारी कंट्री के डिफरेंट रीजन्स की लोकल प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा देश ऑन अ होल, हमारे जो कंट्री ऑन अ होल डेवलप होगा। Many countries have started following the theory in mass media such as Yugoslavia, Kosovo, Ghana, Bangladesh, Nepal, India, US, UK, etc. Community radio is mostly popular in Southeast Asian countries. So these are the countries which are following the democratic participant media theory, and is the best example. Community radio is the best example of democratic participant media theory. And also local newspapers are also a good example of democratic participant media theory. They follow the democratic participant media theory because they are interactive. They are accepting the feedback from the general public. They are focusing on the problem of the general public, the local public, the local problems of the society, the regional problems of the society, and they are working on grassroots level. This theory says that the media should work in the grassroots level, on the grassroots level, and media should be decentralized. Now the strength of democratic participant theory of mass communication. So अब इसकी strength क्या है? So the audience can participate and get alternatives if not satisfied with one media. Yes. So यहाँ पे जो audience है वो participate कर सकते हैं और उनके पास और भी alternatives हैं। अगर वो एक media से satisfied नहीं होते हैं तो उनके पास बहुत सारी media option हो जाएगा access करने के लिए. The theory is stricter than libertarian and social responsibility
which make it more responsible toward the need of the audience. Yes, क्योंकि ये जो democratic participant theory है, इसका जो main focus है, जो priorities है, वो totally needs of the audience पे है, local public पे है, society पे है, लोगों पे है, जनरल पब्लिक पे है. तो इसकी कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है टूवर्ड्स सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको जो मीडिया है वो हाईलाइट करे. जो सोसाइटी है उसकी जो भी लोकल प्रॉब्लम्स है, रीजनल प्रॉब्लम्स है, उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करे और जो गवर्निंग इलीट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उस तक पहुंचाए. द कम्युनिटी कैन वर्क फॉर देमसेल्फ एज सोशल एक्शन. यस, तो यहाँ पे एक सिंगल कम्युनिटी जो है वो अपने खुद के लिए वर्क कर सकती है और एक सोशल एक्शन ले सकती है एज अ सोशल एक्शन, क्योंकि सोसाइटी में अगर उन्हें कुछ सोशल प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं तो उस सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सोशल प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए जो कम्युनिटी है वो खुद ब खुद वर्क कर रही है, एक सोशल एक्शन ले रही है. द थ्योरी इज नॉट वेरी अथॉरिटेटिव अनलेस द प्रेस हिंडर्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. यस, तो ये जो थ्योरी है ये अथॉरिटेटिव नहीं है, और द थ्योरी इज नॉट वेरी अथॉरिटेटिव अनलेस द प्रेस हिंडर्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. देयर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी. सो इस थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी के, इंक्लूजन एंड इक्वल एक्सेस, which makes it eliminate marginalization. Democracy becomes strong with the application of this theory. Yes, exactly. So अगर ये थ्योरी अप्लाई होती है, इस थ्योरी का एप्लीकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है, हर एक इंडिविजुअल को मौका मिल रहा है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर पा रहा है, अपनी बात कह पा रहा है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पा रहा है. स्मॉल मीडिया गेट द चांस टू वर्क फॉर लोकल पीपल. यस, जो कि बहुत ज़रूरी है कि स्मॉल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो लोकल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उनको कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है कि वो लोकल पीपल, लोकल सोसाइटी, रीजन के साथ, अपने रीजन के साथ काम कर सके. Now we will discuss the weakness of democratic participant theory of mass communication. The first is weakness. Criticizing the government is not considered to be productive role of media. So ये एक वीकनेस है कि जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये इस थ्योरी की वीकनेस है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ये एक मीडिया का प्रोडक्टिव रोल नहीं है. लोकल लेवल मीडिया माइट लैक प्रोफेशनलिज्म एंड स्किल. यस, जो लोकल मीडिया है वो कहीं ना कहीं अपने टेक्निकली इक्विपमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं लैक होती है प्रोफेशनलिज्म में. द स्मॉल लोकल मीडिया माइट नॉट बी एबल टू कम्पीट विद मीडिया जाइंट्स. यस, एग्जैक्टली, वो मीडिया जाइंट से कम्पीट करने में थोड़ा सा वो जो स्मॉल और लोकल मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो बिग मीडिया जाइंट्स है उनसे कम्पीट करने में लैक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो बिग मीडिया जाइंट्स हैं उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनके पास फाइनेंशियल एक्सेस है, पर जो लोकल मीडिया है उसके पास फाइनेंशियल एक्सेस कम है. So this is all about the democratic participant media theory. So student, I hope you will understand this lecture. Please go through this lecture and try to understand all the points of democratic participant media theory. So now the theories of press is completed, and by this lecture your module 2 is also completed. So in the next lecture we will now discuss the module 3 topics, and in module 3 topics there are various models and theories, and that we will discuss in the upcoming lectures, in the next lectures. So I hope you will understand all the lectures of principles of communication. So go through the previous lectures also of module 1 lecture also, where we have discussed the importance of communication, what is communication, types of communication, characteristics and functions of communication, mass communication, what is mass communication, what are the characteristics and functions of mass communication, and the purpose of mass communication, different types of mass communication. So in the previous lectures of principles of communication, we have covered all these topics of module 1 and module 2. In module 2 we have discussed the normative theories of press, that are authoritarian, libertarian, social responsibility theory, Soviet communist theory, the four theories of
press, the normative theories, and then today we have discussed the democratic participant media theory that is added by the other two theories that are added by Dennis Maxwell. One is democratic participant media theory and the other is development media theory. So students, please try to listen the lectures carefully and try to understand, go through the PPT in the lecture, go through the lecture given by me, and try to read the newspaper, try to just try to just grab the media content, try to read, try to watch, try to listen the news, and this will increase your skills for mass communication, various skills for mass communication. And reading of news is very important, and you can observe the whatever we have taught, whatever I have taught you in the previous lecture and in this lecture, you can observe the theory part in the practical part. So try to analyze, try to interpret things, try to analyze, are these theories is applied by media, are media applying these theories or not. So try to just gain the theory and practical by practicing, by reading the newspapers, and on the equal level try to just study the practical part and the theoretical part also, and try to analyze, try to observe the theoretical part in the practical part. Thank you class, I hope you will like this lecture.